fundamental of mobile applications, and we already know a few of the revisions topics of SQLite. We already know why SQLite is used, features of SQLite, and CRUD operations on SQLite. So we know that this is the syntax that we'll use to create a database. Open or create database, that is the method. The first parameter is database name. Second parameter is your create if necessary constant variables, and your null, that is the factory parameters. Then we already view how the database is exist with your databases folder, and it is look like this with your device file explorer. Then we are configure also for English language, for locking enable, and for version. Then we understand how to create tables. For that we already create table name, that is the SQL type query, and that SQL type query will execute by your execute SQL methods or execute SQL members of your SQLite database class, that is called methods, and that methods passes with your SQL query that is written in the form of string, and table is created. Same way we can delete the tables. Please keep in mind, if you want to delete the tables, then just keep in mind your database instance, that is called SD. For example, for our demonstrations, that is sd.execsql, that is the method that we already used for creating table, and into bracket you can pass the SQL query, or you can write directly like static format of your SQL format. So drop is used to delete the table. Drop table, that is the keywords that mention in SQL, and this is your table that you already created. So you can replace of this table, you can write your own table also. So this is the simple way where you can delete the tables. Drop table names. Now later on, if you want to delete database runtime during the code, yes, whenever you need to close, you can close your database, like your database object that is called sd.close. Close is a method that allow you to close your database. Otherwise, if you want to delete the SQLite database, you have a several methods that is called delete database. This is the first thing, that is the ready-made database methods that available with you, and just pass your database name, it will delete your database also. So we already know how to create database, how to create table, how to drop table, and how to delete database. So keep in mind, this is the 4 basic steps to create and delete regarding to database and table. Now when we want to create or write CRUD operations, there are 2 ways is possible. First things is called parameterized query, and second query that is called row query. The row query always execute with execsql or row query methods. Please keep in mind, if you want to use row query technique regarding to CRUD operation, you can use RAWQUERY, that is called row query, and second method that is called execute SQL. These 2 methods are used to execute your row query. And another thing that is called parameterized query. Yes, today we will learn about parameterized query because of it is the inbuilt functions regarding to insert, read, delete, and update, that is called CRUD operations. So we are going to learn about parameterized query regarding to your SQLite database instance. Okay. So this is your first step where we have to understand. पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर हम पैरेलली लिखना शुरू करेंगे. So we need to create a special helper class, and that helper class are extend from SQLite Open Helper. Let us do the same thing with our existing class, and then after we will add required parameter as and when. Okay, that is the previous one applications we have already used so and so things. Okay, so now it is okay. Let me show you how it is going to be work. So मैं क्या करने वाला हूँ वो भी मैं दिखाऊंगा, इसके बाद उसका नया डिजाइन भी हम देखेंगे. So everything I am going to show you
one by one, step by step. So let me show you, this is your code, but we are not going to use this code. So right now I am going to delete whatever we have, whatever we already created. See here. So this is the clear things. Another part, that is my design part. So I am also delete that one because of I don't want to use the existing database or anything else with this existing applications. So now it is clear to understand. It is totally blank as like a fresh copy. You can see here. Now this is your applications, like you already created new project, and this is your simple layout that we already used. Let us begin the first part, that is called SQLite Open Helper class. Let me see one by one. See here. We need to create database helper class. The name of database helper class is database helper. Let us see how to create it. Let me create it. So right now I am going to right click on package. There is a new options and Java class, where I am going to write database helper. You can see here, and the class is created. Just press enter key. Your class will be created. Exact in the package of DB application that we already created. Now, second step, we need to extend. So I am going to write extend and then write SQLite Open Helper class. Up to now we already use SQLite database, but from onwards we will use SQLite Open Helper. That is our targeted class that will try to extend the facility in our database helper. And when you extend this class, will provide you several facility. Let me click on this balloon. It will show you implement the methods and just create it. It will say we have a two methods, that is called on create and second is on upgrade. We already discussed on it, on create method and on upgrade method. Let me click on it. Okay. So it will provide you two methods specially. Okay. So on create method with SQLite database. So I am going to use SD as an object. Here I am also used SD as an object, so you can understand. This is your old versions. I am going to write here like this, old versions, and this is your new versions that I am going to write like this. So database का old version ये है, database का new version यहाँ से मिलेगा और ये database का instance हुआ. You can see here. So up to now ये सब कुछ हमारे पास ready है. दूसरा, यहाँ पे एक और एरर आ रही है, तो हमको वहां पे क्लिक करना है और देखना है कि वो कौन सी एरर है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक और वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर आपको बनाना चाहिए. कोई बात नहीं, जस्ट क्लिक ऑन इट. आपको कंस्ट्रक्टर 3 दिए गए हैं, देख लीजिए आपके पास 3 कंस्ट्रक्टर दिए गए हैं यहाँ से, और उसमें से आपको एक कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू यूज फर्स्ट वन. इफ इट इज नीड टू चेंज, वी विल चेंज इट ऑल्सो. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज फर्स्ट वन and your constructor will be created. Don't worry about the other parts. I will explain each and every one by one, step by step process as and when required. Okay. So ये हमारा पहला स्टेप है. ये देख लीजिए. देखिए यहाँ पे मैंने सबके पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग एज अ डिक्लेयर की है टॉप वेरिएबल की तरह. देख लीजिए पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, क्या क्या चीज वहां पे डिक्लेयर की है अंडरस्टैंड कीजिए. db अंडरस्कोर नेम यानी कि डेटाबेस का नेम, टेबल अंडरस्कोर नेम यानी कि टेबल का नेम, कॉलम अंडरस्कोर आईडी यानी कि पहला आईडी उसका नाम है आईडी, कॉलम अंडरस्कोर नेम यानी कि दूसरे कॉलम का आईडी, कॉलम अंडरस्कोर एड्रेस यानी कि तीसरे कॉलम का आईडी. तो इस तरह से हमने यूज किया है, और साथ में हमने एक प्राइवेट वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंटीजर डेटाबेस का वर्जन जिसका नंबर हमने रखा है 1. सो इतने हमको चाहिए, जो फिलहाल अभी मैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग का लिख रहा हूँ. धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा. देख लीजिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग.
और यहाँ पे जो नाम रखना है वो रख दीजिए, जैसे कि डेटाबेस नेम, अभी मैं फिलहाल डबल कोट से कर रहा हूँ, सेमीकोलन, उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। और यहाँ पे आप जो भी सेट करना चाहते हैं, जैसे कि टेबल नेम, जैसे कि KULM कॉलम, और उसका नेम यानी कि ID आप कैपिटल में लिखो, जिससे आपको पहचान मिले कि ये सभी सारे डिटेल हमने कांस्टेंट वेरिएबल की तरह रखा है, जैसे कि नेम, और यहाँ पे एड्रेस था तो हम उसको एड्रेस रखेंगे, इस तरह से बना दीजिए। सो ये हो गया। दूसरा हमको क्या चाहिए, सबके नेम चाहिए, तो हम क्या नाम रखेंगे वो भी हेल्प कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। जहां जहां डेटाबेस हो वहां वहां पीछे DB या आगे DB लिखिए, जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये डेटाबेस का नाम है, और उसी पर्टिकुलर डेटाबेस का बिना DB लिखे हुए लिखेंगे तो वो आपका टेबल हो जाएगा। तो इससे आसानी होगी अंडरस्टैंड करने के लिए। DB लिखा यानी कि वो डेटाबेस है, और पीछे नहीं लिखा यानी कि हमारा टेबल है। फिर तो नॉर्मल स्टेप्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो वो स्टेप्स करने जा रहा हूं, जरा देख लीजिए। सो यहाँ पे मुझे पर्सन्स देख लीजिए, पर्सन्स DB यानी कि डेटाबेस लिखा, यहाँ पे पर्सन C लिखा, यहाँ पे मैंने स्मॉल में ID लिखा, यहाँ पे नेम लिखा, और एड्रेस में ADDR लिखता हूँ, जिससे मुझे आसानी मिलती है समझने में। तो हमारे सभी वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। डोंट वरी अबाउट इट इज इन अ ग्रे मोड बिकॉज राइट नाउ इट इज नॉट यूज्ड। यू कैन सी हियर, यहाँ रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इट नेवर यूज्ड, अभी तक इसका यूज किया नहीं है। इसलिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, हमारा इंपॉर्टेंट लास्ट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर। प्लीज अंडरस्टैंड, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर और उसका वर्जन। सो लेट मी क्रिएट पब्लिक, पब्लिक की जगह प्राइवेट, स्टैटिक फाइनल इंटीजर और उसका डेटाबेस का वर्जन। आप जो वर्जन के साथ आप अपना काम करना चाहते हो वो वहां पे होना चाहिए। तो इतना आपको डिक्लेयर करना है सभी प्रकार के वेरिएबल। सो ये रेडी होना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने ये चीज बता दिया पूरा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर कर बताया था, उस कंस्ट्रक्टर में कई सारे पैरामीटर यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए ओनली वन पैरामीटर इज यूज्ड। सो यू कैन change, you can replace, you can modify your existing constructor with your number of parameters। आप अपनी तरह से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। फिलहाल हम करेंगे context.context का, और उसका सेट यहाँ पे करेंगे। चलो, सो ये याद रखिए। और जहाँ पे सुपर कीवर्ड लिखा है, यानी कि ये जो सुपर कीवर्ड है, यानी कि आपके डेटाबेस कंस्ट्रक्टर में जो आप पास करने वाले हो वो चीज लेकर वो अपने SQLite ओपन हेल्पर के कंस्ट्रक्टर में जाने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये डेटाबेस हेल्पर है जो हमारे क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर आप जो ये पैरामीटर पास कर रहे हो वो पैरामीटर लेकर सुपर यानी कि हमारा SQLite ओपन हेल्पर के क्लास के अंदर जो रखा हुआ कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ये सभी सारे पैरामीटर जा रहे हैं। सो ये आपका रूट क्लास यानी कि हमारा जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर लेकर जा रहा है सुपर। ये सुपर कीवर्ड इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज योर कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। सो प्लीज अंडरस्टैंड। सो वहां पे कॉन्टेक्स्ट तो सेम है, देख लीजिए ये पैरामीटर यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको डेटाबेस नेम देना है। इसके बाद ये जो कर्सर फैक्ट्री का है उसको नल रखना है, और इसके बाद आपका डेटाबेस का वर्जन देना है। तो यानी कि DB_name और DB_वर्जन, दो ही पैरामीटर वहां पे रखना है। लेट मी शो यू दैट थिंग्स विथ योर स्टूडियो सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये जो पैरामीटर सब दिए उसमें से मैं बाकी सबको निकाल रहा हूँ। देख लीजिए, मुझे जरूरत नहीं है, इतना ही चाहिए। तो सर ये क्या हुआ, कोई चिंता मत कीजिए, उसका सबका सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले ये जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ आ गया। अब यहाँ पे नेम देना है। नेम क्या रखना है, मैंने आपको बताया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, ये वाला नेम, इसको कॉपी कर दीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, काम हो गया। इसके बाद नल नाम का फैक्ट्री हमारे पास अभी यहाँ देखिए, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा कोई पैरामीटर नहीं है, उसको हम नल रख देते हैं। और वर्जन हमने अभी बनाया, उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो हमारा कंस्ट्रक्टर सुपर कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया। इससे आसानी ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पास करना है जब आप इस पर्टिकुलर डेटाबेस हेल्पर क्लास को यूज करेंगे। बाकी सब
ये यहाँ से ले लेगा। देख लीजिए, जैसे ही मैंने db नेम और db वर्जन यूज किया, आप देख रहे हो यहाँ उसका कलर बदल गया। तो ये धीरे धीरे हम यूज करने वाले हैं जो उसके कलर बदलते जाएंगे। तो यहाँ उनका कंस्ट्रक्टर रेडी है और यूज हमने करना शुरू कर दिया है। तो ये हुआ। सो अप टू नाउ मैंने उसका कंस्ट्रक्टर बनाना सिखा दिया और नंबर ऑफ सारे वेरिएबल करना सिखा दिया और साथ में SQLite ओपन हेल्पर को कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं वो दिखा दिया। नाउ लेट अस गो हेड विद द नेक्स्ट पार्ट। आपके पास दो मेथड्स है, प्लीज अंडरस्टैंड, ऑन क्रिएट मेथड और ऑन अपग्रेड मेथड। बहुत इजी है, पहले अंडरस्टैंड कीजिए फिर लिखना शुरू कीजिए। मैं पहले उसको कैसे लिखते हैं वो भी दिखाऊंगा और उसको यूज कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग SQL नाम का वेरिएबल है जहाँ पे आपने डबल कोट्स के अंदर अपना क्वेरी लिखा है। डोंट वरी अबाउट द क्वेरी, आई विल शो यू वन बाय वन स्टेप्स। ओके, और इसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया है उसी SQL क्वेरी को, तो यहाँ उसका क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है। साथ में अपग्रेड में हमने क्या किया है कि जो एग्जिस्टिंग टेबल होता है उसको हमने डिलीट कर दिया। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट पर्सन्स एंड db.exec SQL हमने उसको एग्जीक्यूट किया और दोबारा ऑन क्रिएट को कॉल कर दिया, तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। तो पहले इतना अंडरस्टैंड कीजिए, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले ऑन क्रिएट पे जाते हैं, वहां पे क्रिएट टेबल, टेबल नेम और सब कुछ लिखते हैं। चलो आ जाते हैं हमारे फील्ड पे। अब यहाँ पे आपका लॉजिक मालूम होना चाहिए कि मैं SQL क्वेरी लिख रहा हूँ जिसका नाम मैंने SQL रखा है और यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूँ उसका क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब यहाँ पे याद रखिएगा टेबल नेम हमने वहाँ पे टॉप पे डिक्लेयर किया हुआ रेडी रखा है, तो उसको हमको कॉन्कनेट करना चाहिए। कॉन्कनेट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन का यूज करेंगे और साथ में टेबल नेम का यूज करेंगे। टेबल नेम का यूज करेंगे और जिसको हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे टेबल नेम। ये रहा, देखिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब याद रखिएगा जब आप किसी टेबल को क्रिएट करते हो तो किस तरह से करते हो, देख लीजिए यहाँ पे क्रिएट टेबल, ये प्लस साइन का मतलब है कॉन्कनेट, तो टेबल नेम रख दिया। फिर आप याद कीजिएगा जब आपका टेबल का नाम आने के बाद आपको ओपन ब्रैकेट करना है, ये रहा, उसको आपको क्लोज भी करना है, ये रहा। जैसे ही क्वेरी लिखते हैं वैसे ही दिमाग में रखना है, लेकिन जहां जहां आप फील्ड लिखते थे, जहां जहां आप टेबल का नाम लिखते थे, वहां वहां हमारे कांस्टेंट वेरिएबल रख देना है बस। तो लेट मी शो यू सिंपल। मैं इसके भी सिंपल तरीका बताता हूं, पहले देख लीजिए। मैं इससे भी सिंपल तरीका आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, पहले देख लीजिए। पहले मैं कभी कॉन्कनेशन रखता ही नहीं हूं, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, पर्सन्स आ गया। फिर मुझे उसका आईडी लेना था, आईडी उसको टेक्स्ट में रखना है तो टेक्स्ट में रख सकते हैं, इंटीजर में रखना है तो मैं इंटीजर में रख सकता हूँ, जैसे कि इंटीजर। इंटीजर में मुझे उसको प्राइमरी की रखना है तो प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट रखना है तो ऑटो नहीं है, INCREMENT, ओके, ऑटो इंक्रीमेंट। नाउ ये हो गया। इसके बाद मुझे उसका सेकंड पैरामीटर नेम चाहिए तो मैंने नेम लिख दिया, देख लीजिए। उसके बाद उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए तो टेक्स्ट लिख दिया। फिर मुझे लिखना है एड्रेस, फॉर एग्जांपल एड्रेस लिख दिया, वो भी मुझे टेक्स्ट में चाहिए तो टेक्स्ट लिख दिया, ब्रैकेट पूरा किया और सेमीकोलन। ये क्वेरी है, ये देखिए ये पूरा क्वेरी है। आपका क्वेरी इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, सो मैं उसको थोड़ा सा मेरी तरह से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जरा कंट्रोल X कर रहा हूँ, नोटपैड में जा रहा हूँ, आपको पहले यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये है क्या चीज, समझ लीजिए पहले। अगर किसी को फॉन्ट कम लगते हैं तो मैं बड़ा कर रहा हूँ, वेट अ मिनट, बोल्ड के साथ 36, ये देख लीजिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब यहाँ पे मुझे कॉन्कनेट करना है मेरा अपना वेरिएबल, तो जहां पे कॉन्कनेट करना है वहां पे उसके आगे पीछे प्लस साइन होना चाहिए। ये अब ये जो मैंने स्टोर किया उसका नाम था, आपको मालूम है, TABLE, मैंने कैपिटल में लिखा है TABLE अंडरस्कोर नेम। अब याद रखिएगा जब कॉन्कनेट करते हो तो आगे वाली चीज डबल कोट्स में होनी चाहिए। ये हो गया, प्लस साइन आ गया बीच में। अब यहाँ पे आ गए नेक्स्ट लाइन में, टेबल नेम तो हमारा वेरिएबल है। अब इसके बाद जो चीज आती है उसको भी कॉन्कनेट करनी चाहिए, तो हमने कॉन्कनेट करना शुरू कर दिया। अब
ये भी याद रखिए हमने आईडी का नाम रखा है तो उसको कॉन्केनेट करना चाहिए, तो वहां पे प्लस साइन किया। इस चीज को कॉन्केनेट करने के लिए हम उसके आगे पीछे प्लस साइन लगा देते हैं। पहले समझ लीजिए फिर लिखना शुरू कीजिएगा। अब यहाँ पे मुझे उसका नाम बदलना है, जैसे कि कॉलम अंडरस्कोर आईडी, वो कॉलम आ गया। अब यहाँ पे उसका डबल कोट स्टार्ट हुआ, इंटीजर जहां तक उसकी जरूरत है वहां तक वो आ जाएगा, कॉमा तक मैंने कर दिया, फिर प्लस साइन क्योंकि यहाँ पे मेरा उसका कॉलम का नाम आएगा और वो यहाँ खत्म होगा, तो उसको मैं सेट करने जा रहा हूँ COLUMN अंडरस्कोर नेम हो गया। इसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स स्टार्ट होगा क्योंकि उसका पैरामीटर सेट करना है। स्पेस जहां जरूरत हो वहां पे रखिएगा, जैसे कि यहाँ डेटा टाइप का डिक्लेयर किया, सब कुछ जहां पे जरूरत हो, जहां स्पेस रखना है तो रखना है। इसके बाद यहाँ खत्म हो जाता है तो वहां पे मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे कॉन्केनेट किया। तो एड्रेस के आगे पीछे मुझे कॉन्केनेट चाहिए, तो यहाँ पे मैं उसका नाम बदलने जा रहा हूँ कॉलम अंडरस्कोर ADDR, जो आपने जैसे नाम रखा है अपने टॉप वेरिएबल में वैसे रख सकते हो, और यहाँ पे उसका डिक्लेरेशन स्पेस के साथ, और यहाँ उसको खत्म कीजिए और सेमीकोलन कीजिए। तो इस तरह से कॉन्केनेट किया जाता है। जहाँ पे डायनेमिक चीज आप बीच में रखते हो उसका मैं कॉपी कर रहा हूँ और अपने कोडिंग के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा। उसको मैंने रेडीमेड कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जरा आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से उन्होंने लिख दिया। अब सर मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे मैं सिंपल तरीका दिखाता हूँ एक और, वहां पे लिखना सिखा लिया। अब दोबारा क्रिएट टेबल नेम आया, जैसे ही टेबल नेम आया जस्ट प्रेस एंटर की तो वो कॉन्केनेशन अपने आप हो गया, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि टेबल नेम हो गया। अब कॉन्केनेट अपने आप हुआ है तो हमको पीछे प्लस साइन लगा देना है, बस हो गया कॉन्केनेट, शुरुआत हो गया। क्योंकि यहाँ का जो यहाँ का है वो कॉन्केनेट यहाँ हो गया है, तो यहाँ रख दीजिए बेटर। अब उसका ब्रैकेट आ गया। अब याद कीजिए क्रिएट टेबल नेम के बाद आपको क्या रखना है, आपका कॉलम नेम रखना है। तो हमको कॉलम नेम रखने के लिए हमने ये यूज किया कॉलम नेम। आईडी रखना है तो आईडी यूज किया। अब उसको कॉन्केनेट बीच में रखना है और उसका टाइप देना है। टाइप हमको इंटीजर रखना है, जैसे कि इंटीजर। उसके बाद उसको प्राइमरी की रखना है तो हमने प्राइमरी की। उसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो हमने रख दिया ऑटो इंक्रीमेंट। ये सब कुछ करने के बाद हमको कॉमा भी रखना है क्योंकि वो यहाँ कॉलम खत्म होता है। इसके बाद एंटर की तो क्या हुआ, प्लस अपने आप आ गया। अब मुझे सेकंड पैरामीटर चाहिए, तो सेकंड पैरामीटर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पहला कॉलम आ गया है तो यहाँ फिर से कॉलम एड्रेस आ गया, देख लीजिए। वहां पे प्लस था, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो ये सेकंड कॉलम स्टार्ट हो गया। नाउ यहाँ पे उसका डेटा टाइप आएगा, जैसे कि टेक्स्ट, ये कर दिया। उसके बाद कॉमा आएगा क्योंकि सेकंड कॉलम के लिखने के बाद कॉमा साइन आएगा। इसके बाद हम यूज करते हैं प्लस क्योंकि हमारा थर्ड कॉलम आएगा, तो हमने कॉलम ऐड कर दिया थर्ड कॉलम, जिसको एड्रेस, सॉरी यहाँ पे मुझे नेम रखना था, सॉरी वो हो गया, और यहाँ पे नेम एड्रेस कर दिया। अब एड्रेस को भी मुझे टेक्स्ट में चाहिए, तो याद रखिएगा उसको टेक्स्ट में चाहिए, तो हमने टेक्स्ट रख दिया और यहाँ पे उनका ब्रैकेट पूरा किया। जरा ध्यान से देख लीजिए, पूरा क्वेरी हो गया रेडी। लेकिन एट द एंड ये जावा है, हमको सेमीकोलन करना चाहिए, तो ये सेमीकोलन रेडी कर दिया। देख लीजिए पूरा क्वेरी, क्रिएट टेबल नेम प्लस साइन ओपन ब्रैकेट, वो क्लोज हो गया है। पहला आईडी बन गया, इसके बाद इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, कॉमा आ गया, कॉलम नेम टेक्स्ट आ गया, कॉमा आ गया, कॉलम एड्रेस आ गया, और इसके बाद उसका डेटा टाइप के बीच में स्पेस रखना चाहिए, वो रेडी हो गया। तो ये इस तरह से सही ढंग से लिखिएगा। अगर यहाँ एरर होगी तो आपका टेबल क्रिएट नहीं होगा, आपका टेबल क्रिएट नहीं होगा, श्योरिटी के साथ कहता हूँ। जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया वही चीज वहां पे मैंने आपको दोहराई है, दोबारा आपके स्क्रीन के सामने लिख दिया है। और फिर आपको लिखना है, देखिएगा, फिर आपको लिखना है एसडी यानी कि हमारा ये डेटाबेस exe एक्सिक्यूट और एसक्यूएल को पास करना है। तो हमारा टेबल इस तरह से क्रिएट होता है। व्हेन ऑन क्रिएट विल कॉल, ये एसक्यूएल की क्वेरी रन होगी, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका इनिशियलाइज होगा और वो मेथड के अंदर जाकर एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से वो पर्टिकुलर टेबल को क्रिएट करता है। तो क्रिएट
करने के बाद वो आगे बढ़ता है। जो ऑन क्रिएट जैसे क्रिएट किया वैसे ही हम अपना नेक्स्ट स्टेप करने वाले जिसको ऑन अपग्रेड कहते हैं। पहले समझ लीजिए, ये एसक्यूएल की क्वेरी बनाई जिसको ट्रैप ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट पर्सन, यानी कि अगर हमारा ये जो टेबल है वो एग्जिस्ट है तो उसको ड्रॉप करेगा, क्योंकि जब आप एक बार यूज करोगे तो ये क्रिएट कर देगा। व्हेन यू यूज द नेक्स्ट टाइम टू अपग्रेड, तो आपको जो पहले वाला टेबल है उसको डिलीट करना पड़ेगा। सो ये उनका लॉजिक है। ये नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन जैसे ही सेकेंड टाइम रन करोगे तो कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करेगा तो ये दोबारा क्रिएट करेगा और वहां पे एरर आएगी। इसलिए हम ये यूज करते हैं ऑन अपग्रेड एसक्यूएल की स्ट्रिंग ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, और इसके बाद उसको एग्जीक्यूट एसक्यूएल से रन किया गया है और दोबारा ऑन क्रिएट टेबल को क्रिएट किया गया है। चलो मैं दिखाता हूँ हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क। तो पहले एसक्यूएल की क्वेरी लिखना अच्छी तरह से आना चाहिए। तो लेट मी शो यू। ये स्ट्रिंग है, ये एसक्यूएल नाम दे दिया। देखिएगा ड्रॉप टेबल, किसका नाम, जो आपको टेबल डिलीट करना है, लेकिन कब डिलीट करना है, इफ एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट है तो कौन से टेबल को डिलीट करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इस तरह से नाम भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे नाम नहीं लिखना है, मुझे कॉन्केनेट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्केनेट इस तरह से कर सकता हूँ, टेबल नेम, ये कॉन्केनेट कर दिया। देख लीजिए, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट विद टेबल नेम। पहले मैंने स्टैटिक फॉर्मेट में बताया आपको पावर पॉइंट में, अब यहाँ पे उसको हम डायनेमिक फॉर्मेट में यूज करने जा रहे हैं। डायनेमिक फॉर्मेट में यूज करने जा रहे हैं जो यहाँ पे दिखता है। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एसडी एग्जीक्यूट तो है, देख लीजिए, और वहां पे एसक्यूएल पास कर दीजिए। तो टेबल तो डिलीट हो गया, लेकिन हमको दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीट होने के बाद अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे तो हम क्रॉड ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। सो हमको नया क्रिएट करने के लिए पूरा लाइन नहीं लिखना है, हमको ये मेथड है उसको यहाँ पे कॉल कर देना है। तो मैंने कॉल कर दिया, और हमको क्या पास करना है, बीच में उसको क्या चाहिए, एसक्यूएलाइट डेटाबेस का इंस्टेंस जो हमारे पास ऑलरेडी है। जस्ट प्रेस एसडी और सेमीकोलन। तो ये आपका ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा और ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा और टेबल फिर से डिलीट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ डिलीट किया इन दो लाइन से, और इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने से ये दो लाइन उसको इनिशियलाइज करते हुए क्रिएट करेगी। स्टेप 3 जहाँ पे हम ऐड पर्सन करने वाले हैं, अभी नहीं करेंगे, जब उसकी जरूरत होगी, लेकिन ये मेथड वहां पे ऐड होगी। गेट पर्सन्स, हम वहां से एक पर्सन्स को गेट भी करा सकते हैं, यानी कि सर्च भी करा सकते हैं। इसके बाद हमारा डिजाइन शुरू हुआ। आप पहले डिजाइन को अंडरस्टैंड कीजिए। लीनियर लेआउट है, फिर हम ये सभी ऑपरेशन धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। लीनियर लेआउट है, वर्टिकल, और यहाँ पे देखिए ये हमारा टेक्स्ट व्यू और उसका एडिट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट व्यू और उसका एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे 3 बटन है, सेव, व्यू और रिसेट। सेव, व्यू और रिसेट, और जिसका नाम यहाँ पे रखा हुआ है। ये डिजाइन आपको क्रिएट करनी है और हम ये डिजाइन क्रिएट करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, नेम, एडिट टेक्स्ट, एड्रेस, एडिट टेक्स्ट, फिर 3 बटन। सो मैं अपना ये एक्टिविटी में गया। ध्यान से देख लीजिए क्या करने जा रहा हूँ। वर्टिकल डिजाइन ऑलरेडी है, तो मैंने टेक्स्ट व्यू रख दिया, यहाँ आ गया। इसके बाद मैंने एडिट टेक्स्ट रख दिया। ध्यान से देख लीजिए, प्लेन टेक्स्ट को ही रख रहा हूँ, तो हमने उसको रख दिया, तो हमारा नेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट हो गया। इसके बाद दोबारा हमने टेक्स्ट व्यू रख दिया, इसके बाद दोबारा प्लेन टेक्स्ट रख दिया। ध्यान से देखते जाइए। अगर आप एड्रेस रखना चाहते हो तो एड्रेस भी रख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं छोटा ही वेरिएबल ले रहा हूँ जो एक ही लाइन में आएगा। ओके, इसके बाद मुझे 3 बटन चाहिए, तो मैंने बटन रख दिया। देखते जाइएगा बटन किस तरह से क्रिएट होते हैं। तो ये बटन हो गया। सो ये चीज हो गई। अब मैं पहले चीज को क्लिक करते हुए उसका एट्रीब्यूट बदलने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से देख लीजिए बटन, ये चीज को जहाँ पे उसको नाम रखना है नेम, मैं कैपिटल फॉर्मेट में ही रखूंगा। तो उसका आईडी रखना है, तो उसका टेक्स्ट व्यू है, तो जिसे कि टेक्स्ट व्यू को हम इस तरह से लिखते हैं। देख लीजिए टेक्स्ट व्यू, टीवी नेम, और उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लिखने जा रहे हैं नेम, हम कैपिटल में लिख सकते हैं, तो इस तरह से वो दिखेगा। अब उसका साइज भी बढ़ा देते हैं, तो जिससे आपको पहचान आए कि ये हम क्या यूज करने जा रहे हैं। तो ये हो गया। इसके बाद सेकंड पैरामीटर, सेकंड चीज को, तो वहां पे एडिट टेक्स्ट
आपको मालूम है एडिट टेक्स्ट को मैं ईटी लिखता हूँ और वहां पे नेम लिख देता हूँ, सेम पैरामीटर, लेकिन ईटी से समझ में आ जाना चाहिए एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे उसको ब्लैंक कर रहा हूँ लेकिन उसकी हिंट यूज कर रहा हूँ, देख लीजिए हिंट प्रॉपर्टी, एंटर योर नेम। ये जब तक उसको क्लिक नहीं करोगे उस जगह पे तब तक वो दिखाई देगा, यानी कि विजिबल रहेगा। और उसकी भी टेक्स्ट साइज हम वैसा करते हैं, सबकी टेक्स्ट साइज एक ही जैसी रखेंगे तो आपको समझ में भी आसानी होगी। तो ये रख दिया। फिर से उसका नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू आया तो टेक्स्ट व्यू, और वहां पे एड्रेस था तो ADDR रख दिया। और सॉरी ये मेरी गलती है, एड्रेस लिखना है लेकिन उसका आईडी हमको बदलना है, जैसे कि आईडी हमने रखा था पिछले फॉर्मेट में, जैसे कि ADDR, ये रख दिया। अब उसका टेक्स्ट साइज बदलना होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते 30 SP, ये कर दिया। इसके बाद उसका नेम प्रॉपर्टी आया तो वहां पे भी हमको चेंज करना है, एडिट टेक्स्ट है तो ET ADDR सेम रखिए, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। हिंट प्रॉपर्टी जरूर यूज कीजिएगा जब एडिट टेक्स्ट हो। एंटर योर एड्रेस, तो ये यहाँ पे दिखाई देगा एज अ डिसेबल। और उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दीजिए, 30 SP मैंने कर दिया। अब हम 3 बटन की बारी। पहला बटन सेव था तो हम उसको नाम रखेंगे BTN सेव, उसकी प्रॉपर्टी सेव, और उसका टेक्स्ट साइज वो भी 30 SP हो गया। तो ये रेडी होगा। वैसे ही हम दूसरा यूज करते हैं, जैसे कि BTN व्यू, यानी कि एक चीज को दिखाने के लिए वो रिकॉर्ड सही ढंग से स्टोर हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए, और उसका हम टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी 30 SP ही रखेंगे। तो ये रेडी हुआ। यहाँ पे उसको रिसेट के लिए मैं कोड रख रहा हूँ, जैसे कि BTN रिसेट। तो जितना आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोडिंग करेंगे उतना आपको सभी चीज को याद रखने में आसानी होगी। जैसे कि मैंने उसी को ट्राई करते हुए सबका कोडिंग फॉर्मेट सेम रखने की कोशिश किया, देख लीजिए। अब मुझे उसका देखना और लुक भी अच्छा रहेगा, समझ में भी आ जाएगा कौन सा बटन किसका नाम है। तो इस तरह से मेरा डिजाइन रेडी हुआ है। उसको एक बार अगर आप देखना चाहते हो तो आप रन कर देख लीजिए, तब तक आप मुझे रिप्लाई कीजिए क्या सही ढंग से आपका डिजाइन रेडी हो गया।